Garima, you've been a journalist and with Indian Express for almost 2 decades now. And you are known for your integrity and conscious storytelling. I worked with the Indian Express for almost 2 decades, as you said, and 2 decades is a very long time. On an average, अगर हम देखें कोई इंसान अगर 75-80 साल जीता है तो उसकी ज़िंदगी का एक चौथाई हिस्सा हो जाता है वो. In your journalism career, is there any story, any moment, any experience that has hit you hard? हमको बोला गया था कि जो विक्टिम्स हैं उनकी लाइक रिविज़िट करें और उनको इंटरव्यू करें, तो कुछ रिपोर्टर्स को सीरीज़ ऑफ स्टोरीज़ बोला गया था. segment that I want to go to is this beautiful platform. तो मेरे को लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे लोग आके जो लिखा है उसको व्यक्त कर सकें. But I think poetry is something और कविता ऐसी चीज़ है कि उसके बारे में बात तो हमने बहुत की है लेकिन कुछ सुनना भी चाहते हैं. कहा है कि एक बड़े शहर के छोटे से मोहल्ले में, एक बड़े शहर के छोटे से मोहल्ले में खिलौना वाला आया, घंटों पुकारता रहा. Welcome to the Bharatiya Frequency. This is a podcast and a talk show where we tune into the soul of a civilization through thinkers, seekers, authors, poets, and even content creators. I'm very pleased to introduce my co-host today, Achal Gupta Kalantri, who's joining us, and she would be the co-host on many of the Bharatiya Frequency episodes. So welcome, Achal. Thank you, Mimi. I'm absolutely delighted to be here today and to be co-hosting Bharatiya Frequency. You know, I really, really believe in your channel, and I am really looking forward to our chat today. Wonderful. So let's dive in. And we have a very, very interesting and a very high achiever and someone who deserves all our admiration as a guest today. She is both a poet, an author, a journalist, and she has two very beautiful platforms that promote her art of poetry, which is the Kavita Cafe and Healing Verses, which we're going to talk more about on this episode. So welcome Garima Mishra to the Bharatiya Frequency. Thank you Meenakshi, thank you Achal. I'm extremely glad to be here, and I have honestly followed Bharatiya Frequency's journey since its inception, and I'm too excited to be here, and so looking forward to this conversation. Wonderful. And just a little thing for our viewers that ये जो episode है ये both हिंदी और English दोनों में हम बात करेंगे. So please enjoy कीजिएगा. Garima, you've been a journalist and with Indian Express for almost 2 decades now. Yes, correct. And you are known for your integrity and conscious storytelling. How has this journey panned out for you, and what has your experience been? What you have taken from this journey of journalism, and what is it that you feel you've contributed to the journey of journalism? So, I worked with the Indian Express for almost 2 decades, as you said. 2 decades is a very long Very time. long time. Yes. On an average, अगर हम देखें कोई इंसान अगर 75-80 साल जीता है तो उसकी ज़िंदगी का एक चौथाई हिस्सा हो जाता है वो. तो इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड ये जो 20 साल रहे हैं they have been extremely fulfilling and enriching and very productive years of my life. I learned a lot, and as you said, not just me, I would say Indian Express is known for honesty and Correct, integrity. yes. So ये जो 20 साल हैं मुझे बहुत सीखने मिला, अलग अलग लोगों को इंटरव्यू करने मिला, और आम आदमी में ख़ास स्टोरी ढूंढना, वाह. yes. वो जो है ना वो वहाँ करने मिला मुझे. तो जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी वो मैंने सीखी, जो आती थी उन्हें और बेहतर करने की कोशिश की. सभी रिपोर्टर्स से कुछ ना कुछ सीखा, और इन रिपोर्टिंग स्टोरी करना एक चीज़ होती है और स्टोरी को अप्रोच करना एक चीज़ होती है. लिख तो कोई भी सकता है, बट द वे यू अप्रोच अ स्टोरी विथ फुल ऑनेस्टी, फुल डेप्थ, that is something which I learned at Indian Express, and I'm very thankful for these years that I spent there, and I've made some really great friends who are, some of them are still in journalism,
एंड आई एम स्टिल इन टच विद देम. एंड वो जो 20 साल हैं, जो भी कुछ मैंने सीखा, वो ऑनेस्टी, वो डेप्थ, आई थिंक वो सब मेरे में कहीं ना कहीं रह गई. और आई थिंक इट रिफ्लेक्ट्स इन माई पोइट्री ऑल्सो टुडे. ब्यूटीफुल. मुझे आपकी ये बात बहुत खास लगी कि आम आदमी में खास स्टोरी ढूंढना. हाँ, क्योंकि खास तो खास ही होते हैं, पर आम आदमी में खास ढूंढना वो ब्यूटीफुल है. बिकॉज हम भारतीय फ्रीक्वेंसी में भी हमारी थोड़ी कोशिश रहती है कि जो हमारा सनातन धर्म एंड बीइंग भारतीय वाला थीम है, बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब में जहाँ पे उस एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, जो हमारे गुरुज हैं, जो हमारे इतने इन डेप्थ एक सब्जेक्ट को जानते हैं, उनसे बात की जाती है. बट उससे मुझे लगता है कि कभी कभी जब आम आदमी इन पॉडकास्ट को देखता है, इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है उसको, पर उनको ये नहीं लगता कि ये हम अपनी ज़िंदगी में इसको लेके कुछ कर सकते हैं. सो हमारी ये कोशिश रहेगी इस पॉडकास्ट में कि हम ऐसे रेगुलर पीपल से भी इनकी खास स्टोरीज़ जाने, इनकी खास वैल्यू सिस्टम्स जो इस स्टोरी को सपोर्ट कर सके, उसके बारे में कुछ सीखे. तो ये जो आपने बात कही मुझे बहुत अच्छा लगा. पर कितना मुश्किल होता है कि नेचुरली अभी आई एम श्योर यू कवर्ड एवरीथिंग, सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिक्स. हाउ हार्ड इज़ इट कि एक ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी मेंटेन करना, बिकॉज वेरी ऑफन वी नो कि व्हाट यू सी इज़ नॉट द रियलिटी, व्हाट मीट्स द आई इज़ नॉट द रियलिटी. तो इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है? देखिए, जर्नलिज्म जो रहता है वो तो तथ्यों पे चलता है, इट डील्स विद द फैक्ट्स. सो आप ऐसा उसमें कुछ इस तरफ उस तरफ जाने का स्कोप नहीं रहता है. ऑफ कोर्स आपके ऊपर भी है, बट पेपर्स में जब हम काम करते हैं हमें यही सिखाया जाता है कि आप अपने Stick to the व्यूज़ facts. बाजू में रखिए. करेक्ट. लुक एट एवरी स्टोरी ऑब्जेक्टिवली. जो सच है वही परोसिए. तो उसमें एज लॉन्ग एज यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, योर जॉब, आई थिंक उसमें मुश्किल नहीं है कुछ भी. वंडरफुल. आपने जो इधर उधर घूमने की बात करी, इस पे मैं आपको, यू आर अ पोएट एंड फॉर समवन हु इज़ सो फैक्चुअल एंड देन फॉर समवन हु इज़ सो इमोटिव एज अ पोएट, ये आप कैसे ब्लेंड करते हैं? ये आप अपनी लाइफ में कैसे, हाउ डू यू बैलेंस दीज टू पर्सनैलिटीज, आई एम अज्यूमिंग, ऑफ योर सेल्फ? सो एज आई सेड, जहाँ पे तथ्यों की बात है, फैक्ट्स की बात है, सो वहाँ पे यू हैव टू डील विद द फैक्ट्स. जहाँ व्हेन इट कम्स टू पोइट्री, इट्स अबाउट इमोशंस. एंड व्हेन इट्स इमोशंस, तो अगर मैं किसी फूल के बारे में लिख रही हूँ, किसी व्यक्ति के प्रति मेरे प्रेम के बारे में लिख रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सम ब्यूटिफुल प्लेस दैट आई हैव बीन टू, आई विल बी राइटिंग ओनली व्हाट आई एम फीलिंग अबाउट इट. Even if I'm writing about some tragedy that has taken place in a different city, different country, उसमें भी मेरे ही इमोशंस आएंगे. विज़ाविज़ जब हम पेपर में यही बात लिखते हैं, मैं हो सकता फील कर लूँ किसी त्रासदी के बारे में बड़े डीपली, बट वो मैं पूरा वो नहीं लाऊंगी जो मैं फील कर रही हूँ. करेक्ट. तो एम्पैथी रखना पड़ता है, और जहाँ तक हो सके जो भी है, जो भी देखा है, वो सब वैसे ही पेश करना पड़ेगा आपको. अगर किसी जगह पे समझो, फॉर एग्जांपल अगर समझो लैंडस्केप हो गया है, 20 लोग जा चुके हैं और कुछ घर नष्ट हो गए हैं, आप वही Naturally you बताओगे. feel deeply, हाँ. फिर अगर लेकिन हम जो करते हैं, जहाँ पे हम ह्यूमन सेंट्रिक स्टोरी की बात करते हैं, जहाँ पे हम टच कर पाते हैं कॉर्ड्स को, तो वहाँ पे हमें वही, बजाय इसके कि 50 पीपल डाइड, वो बोलने के बजाय आई थिंक जब हम ये बताते हैं कि कोई एक फैमिली थी जिसमें सिर्फ एक कमाने वाला था, 8 रहने वाले थे, और वो गुजर गया, और उनको उसमें डीप जाना, उनकी स्टोरी में वो बताना रीडर्स को, वो हो गया रिपोर्टिंग की बात. और जैसा मैंने कहा पोइट्री की बात, तो वहाँ क्रिएटिव लिबर्टी तो रहती ही है, और हर लिखने वाला हर इमोशन को अलग तरीके से देता है. मतलब हार्ट ब्रेक पे अगर कुछ लिख रहे हैं समझो, तो हो सकता है कि कोई ऐसा लिखे कि मतलब कुछ रिवेंजफुल लिख दे, या कोई और लिखे तो पूरा मतलब जो एक्चुअली शिद्दत से महसूस कर रहा है जो दर्द, वो बयान करेगा.
तो वो अपना अपना तरीका है वहाँ पे. Absolutely beautiful. है Very, ना? very, very beautiful. I think ये जो है ना journalism, reporting and poetry, these are the two extreme ends of the spectrum of writing. You know, एक होता है जो आपने कहा totally factual, and the other extreme where it is completely the poet's perspective. Yeah, correct. It is completely, you know, their view or their take on something, and that's the beauty of it. And I think इसलिए हम अक्सर मैंने महसूस किया है कि जब मैं कोई किताब पढ़ती हूँ और फिर उसका कोई फिल्म बनता है, I've always enjoyed the book more. Yeah, Because वो that मेरी happens. perspective, मेरी imagination and you know writer's point of view से हम उसको absorb करते हैं. Whereas on screen you see a director's interpretation of that book. So from that perspective, I think that's you know, one of the beauties of poetry is that the poet is able to take you into a realm that you may not have been able to go to yourself. Yeah. You know, and think that's beautiful. Garima, you've received the Indian Express Award for Excellence for one of your stories. Correct. In your journalism career, is there any story, any moment, any experience that has hit you hard? Actually, there have been many such incidents, but one story that has stayed with me and that instantly strikes me right now is the time when I interviewed a lady who was very young. If you remember, in 2010, पूना में जर्मन बेकरी ब्लास्ट हुआ था, राइट? और उस समय काफ़ी लोग घायल हुए थे, काफ़ी लोगों की जान जा चुकी थी. तो उसके अगले साल हमको बोला गया था कि जो विक्टिम्स हैं उनकी रिविज़िट करें और उनको इंटरव्यू करें. तो कुछ रिपोर्टर्स को सीरीज़ ऑफ स्टोरीज़ बोला गया था. सो आई रीच्ड आउट टू वन लेडी. ऑफकोर्स मैं नाम नहीं बता सकती उनका. मुझे ये याद इसलिए रह गया कि जब मैंने उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने साफ मना कर दिया है. शी सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एंड द रीज़न वाज दैट अर्लियर some other newspaper, a tabloid, had interviewed her and misquoted her and had presented her as a sorry figure, which she didn't like. And since then she actually told me that I've lost faith in all the journalists and all the newspapers, so I don't want to talk to you. So that's when I think अगर आप में कहीं empathy है तो वो सामने वाले को दिखती है. तो that's when I told her, उनको विश्वास दिलाया कि मैं कहीं पे भी एक भी शब्द इधर का उधर नहीं करूँगी और वो मुझ पे विश्वास कर सकती हैं. और मैंने ये भी बोला उनको कि हो सकता है कि वो सोच रही हैं कि वो मेरे लिए सिर्फ एक स्टोरी है और एक खबर है, पर मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ. तो मैं उनको अपने आप को उनकी जगह पे रख के देख सकती हूँ. और उन्होंने विश्वास किया मुझ पे. और हुआ ये था कि जिस दिन ये जर्मन बेकरी का ब्लास्ट हुआ था उस दिन वो रहती तो मुंबई में थी, वो पूना आई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ, और कुछ उन्होंने फ्लैट की डील फाइनलाइज करी थी और उसको सेलिब्रेट करने के लिए दे वेंट टू जर्मन बेकरी. एंड अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हो गया. बोथ ऑफ देम वर हॉस्पिटलाइज इन अ नियर बाय हॉस्पिटल. हस्बैंड हैड डाइड and she wasn't informed about his death because she was undergoing several surgeries for nearly 6 months, and in a span of 2 years she had to undergo 20 plus surgeries. Even at the time when she spoke to me, her jaw could not open, so she wasn't able to talk properly. I interviewed her, and all through the interview, you will not believe, I was literally shivering listening to her. And एक जब पूरा हो गया, छप के आ गया, उन्होंने खुद से मुझे कॉल किया कि थैंक यू सो मच गरिमा फॉर री इंस्टिलिंग फेथ इन न्यूज़पेपर्स, क्योंकि तुमने एक भी शब्द इधर का उधर नहीं किया. और उसकी मुझे खुशी है, क्योंकि उस वक्त मेरा काम सिर्फ ये नहीं था कि मुझे गरिमा मिश्रा का नाम कुछ ऐसे मेंटेन करना था. आई डिडंट वांट कि इस एपिसोड के बाद उसके मन में मेरे प्रति तो जो है सो है, पत्रकारों के प्रति और इंडियन एक्सप्रेस के प्रति कुछ खटास रह जाए. सो वो एक आज
एक फुलफिलिंग सेटिस्फाइंग फीलिंग है कि ठीक है, वेर एवर शी इज़ हैप्पी, कुछ नेगेटिव नहीं है उसके मन में। तो वो एक स्टोरी रह गई मेरे मन। वैसे तो बहुत हैं, बट ये एक है जो मेरे जहन में है आज भी। हाउ ब्यूटीफुल। क्योंकि आई थिंक ऐसे वक्त पे आपके यहीं पे मुझे लगता है कि आपकी वैल्यू सिस्टम्स, आपकी फेथ, दोनों तरफ, बोथ यू एज अ जर्नलिस्ट रिप्रेजेंटिंग हर स्टोरी, और कितनी मुश्किल जर्नी होगी वो, एक नए नए घर को सेलिब्रेट करने वो आई पूना और उनका घर तबाह हो गया, यू नो। सो आई थिंक दैट इसमें इसी में द रिक्वायरमेंट टू हैव योर यू नो ट्यून इन टू योर भारतीय फ्रीक्वेंसी। और वही मैं आपसे अर्लियर पूछ रही थी इसी कॉन्टेक्स्ट में कि स्टेइंग ट्रू टू द स्टोरी, बिकॉज वेरी ऑफन व्हाट यू सी इज़ नॉट द व्हाट यू रीड इज़ नॉट द रियलिटी। काफ़ी उसको ड्रामेटाइज ग्लैमराइज करके पेश किया जाता है जनरली। Yeah. So I think that speaking of that and speaking of value systems, right, that is also what I think Mimi is trying to say, that your value systems are very important in journalism, because you have displayed that level of empathy for her, and True, Yeah. true. that has reflected. Yeah. And I think value systems are the only thing that can hold you through your journey of life, because कब क्या हो जाए इस तरह से, we don't know. Then you have to have something to fall back on. Yes. And at that time it's absolutely essential that you know, this is why the younger generation, I would say even our generation, takes the trouble to understand our faith, our value systems, and uses it to underpin you know, their lives, because we need it, especially in the kind of times, I think, you know, of geopolitical chaos that we are going into. Absolutely. And technological innovation to the point of going beyond transformation that is Absolutely. coming our way, you know. So I think the next segment that I want to go to is this beautiful platform for you know, making Hindi को एक contemporary language, एक creative language, एक you know, language of today की तरह promote करना। ये आपको आइडिया कहाँ से आया कविता कैफ़े के लिए? देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे तरह तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑल्सो। आप कंपेयर करें दूसरे देशों के में, तो अगर फ्रांस है तो फ्रेंच, ऐसा, राइट, जर्मनी है तो जर्मन, बट हमारे यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं जिनकी अपनी अपनी खासियत है, अपनी अपनी खूबसूरती है, सबकी अपनी अपनी मिठास है। मैं क्योंकि नॉर्थ बेल्ट से बिलोंग करती हूँ और खुद हिंदी में लिखती हूँ, बोलती हूँ, तो इसीलिए मेरा एक थोड़ा ज़्यादा लगाव है। हालांकि भाषाएं सभी खूबसूरत होती हैं। तो जब मैंने लिखना शुरू किया और मुझे एक ऐसा वैक्यूम सा लगा कि हिंदी पोइट्री परफॉर्मिंग प्लेटफॉर्म्स के में, तो मेरे को लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे लोग आके जो लिखा है उसको व्यक्त कर सकें, और अगर नहीं लिखते हैं तो उनको शायद इंस्पिरेशन भी मिले। एक और रीज़न ये है कि चाहे आपका नॉलेज आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनको 5, 10, 8 भाषाएं आती हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब आप दिल से कुछ कहना चाहते हो तो फिर वो एक ही भाषा होती है, जो एकदम अंदरूनी आपके एहसास हैं, अंदरूनी जज्बात हैं, डीप से डीप थॉट्स हैं, वो उसके लिए एक ही भाषा होगी। थिंक इन दैट लैंग्वेज। हाँ, तो वो मेरे लिए हिंदी है, औरों के लिए कुछ और होगी। तो मुझे लगा कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जिसमें लोग आके अपने आप को व्यक्त कर सकें, तो इसीलिए ऐसे शुरुआत हुई थी कविता कैफे की। Beautiful. I love the name also, I was just Kavita going to say. Cafe. It's so कैफे विद name. K। yeah, Cafe with a K, and I'm really looking forward to actually coming and witnessing some of these events and even participating in the near बिल्कुल future. बिल्कुल बिल्कुल आइए। तो ये जो वर्ल्ड है, डिजिटल कंटेंट का वर्ल्ड, इंडिया में ये काफ़ी इंग्लिश डोमिनेटेड है। यू नो, मुझे खुद लगता है कभी एक वीकनेस है मेरे में कि मेरी इंग्लिश इज़ माय फर्स्ट लैंग्वेज, इट्स द लैंग्वेज आई थिंक इन एंड राइट इन। सो आई थिंक कि जो यंगर जनरेशन है उनके लिए ये हिंदी लैंग्वेज को एक यू नो, उनके प्राइमरी एक्सप्रेशन, मोड ऑफ एक्सप्रेशन की तरफ आप कैसे ले जाते हो? क्या है इसका? एक्चुअली यू नो व्हाट मीनाक्षी, मेरा ये अनुभव रहा है कि वैसे तो अनफॉर्चुनेटली हमारे भारत में आज भी स्पीकिंग इंग्लिश इज इक्विवेलेंट विद बीइंग मॉडर्न।
एंड So अ true. साइन ऑफ प्रोग्रेस. So तो true. वो तो छोटे छोटे गांव और कस्बों में भी हो रहा है कि अगर आप थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल देते हैं तो माना जाता है कि अरे चलो पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा, अंग्रेजी आना. तो ऐसे में जब मैं देखती हूँ पूना में, मतलब व्हेन आई गो टू वॉच हिंदी प्लेज, I see lot of youngsters who are in their 20s, like under 25. They are coming for Hindi plays, and they are from, like, they look from good families, good schools. They are watching, and even Wonderful. in Kavita Cafe, when youngsters come to perform, they are very young, like 20 somethings, but they are writing. Some of them are writing extremely good, and they are reading also, not just writing. They are reading like very known authors. सो रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ रहे हैं वो लोग, प्रेमचंद को पढ़ रहे हैं. तो वो देख के चेंज है लेकिन ऊपर ऊपर से नज़र नहीं आ रहा है. तो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव. मैं तो इसको बहुत पॉजिटिवली देखती Beautiful, हूँ. beautiful. और थैंकफुली बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ये जो पूरा एनवायरनमेंट है ये ओपन माइक्स के लिए बहुत ही कंड्यूसिव रहा है. पोएट्स के लिए, जो यंग पोएट्स हैं जिन्होंने अभी अभी लिखना शुरू किया है या लिखना चाहते हैं, उनके लिए इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और ये जो ओपन माइक्स होते हैं तो बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. इट्स ऑल वेरी एनकरेजिंग. इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी सो मेनी पीपल राइटिंग इन हिंदी एंड एक्सप्लोरिंग Hindi language. Beautiful, beautiful. I agree with you that I think, you know, we've had so many stars, you know, international stars like Justin Bieber in music, for example, who have all come through social media and YouTube. तो ये एक बहुत बड़ा opportunity है लोगों को. It's like a worldwide open mic, I think. बिल्कुल बिल्कुल. Which is wonderful. So गरिमा, आप कविता कैफे में काफ़ी interesting events I think every month organize करते हो. There is Aram, there's Baatcheet and many others. So talk to us a little bit about what these events are. और हमें ये भी कोई क्षण, ऐसा कोई मेमोरी इनके बारे में जो आप हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं. प्लीज़ गो अहेड एंड टॉक टू अस अबाउट इट. तो हर जो इवेंट रहता है उसका एक नाम रखती हूँ मैं, और उस थीम पे ज़्यादा करके पोएट्स हैं जो परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं. बट ऐसा कुछ टाइट रूल नहीं है कि उस थीम पे ही परफॉर्म करना है आपको. लेकिन जो आप पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा मोमेंट, स्पेशल मोमेंट जो मुझे याद रह गया, एक तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर मोमेंट, बट लगातार हर इवेंट में कुछ ना कुछ होता है. और एक जो मैंने चेंज देखा है जिसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की, कि कुछ हमारे यहाँ पे पोइट्स ऐसे आए हैं जिनकी एज रिटायरमेंट पार कर चुके हैं, वो 60-70 वाले, और जिन्होंने अपने स्कूल के टाइम पे परफॉर्म किया था और एक लंबे गैप के बाद अब जाके कविता कैफ़े में परफॉर्म किया है. और उन्होंने मुझे बताया कि अब उनमें लिखने की चाहत आई है और उन्होंने लिखना शुरू किया है. तो उसकी मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग लिख रहे हैं और उनमें दोबारा एक चाहत आई है. और करीब कोशिश उनकी ये रहती कि रेगुलरली परफॉर्म करें यहाँ पे. एक दो ऐसे भी रहे हैं जो व्हील चेयर बाउंड थे, और जब उनको पता चला कि ऐसा कुछ है मंच, तो उन्होंने आके जो भी कविताएं उन्होंने लिखी थी वो सुनाई हैं. तो किसी इंसान का पहली बार मंच पे जाके परफॉर्म करना उसके लिए बहुत स्पेशल होता है, एंड दैट इज़ स्पेशल फॉर मी एज वेल एज अ होस्ट. और कुछ लोग हैं जो एज एन ऑडियंस आके अटेंड करते हैं और फिर मेरे को बाद में बताते हैं कि पिछली बार मैं ऑडियंस की एज एन ऑडियंस आई थी और मुझे थोड़ी हिम्मत बंधी, और इस बार मैं हिम्मत करके आके परफॉर्म कर रही हूँ और थोड़ी नर्वस हूँ. और फिर वो परफॉर्म करते हैं और उनको इतनी हिम्मत आती कि वो फिर धीरे धीरे मेरे ही नहीं दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स में जाने लगते हैं. तो विच इज़ अ वेरी आई वुड से अ पॉजिटिव चेंज. And what a beautiful, as you said, experience for you कि आपने ये एक मंच प्रोवाइड किया है जो पहली बार लोग आ रहे हैं और पहली बार अपनी देर डिस्कवरिंग themselves. Yeah, And I and think- at that age. Yeah, at that age, which is so motivating in so many ways. And I think एक और भी बड़ा यूनिक इस कविता कैफ़े के बारे में सुनने में आता है कि आप पोइट्री और म्यूज़िक दोनों मीडियम्स को भी कंबाइन करते हो. सो ये बहुत मतलब एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि ये दोनों आर्ट फॉर्म्स एक दूसरे को कैसे एनरिच करते हैं.
ये कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. इट इज़ ऑब्वियस इन सम वेज कि पोइट्री एंड लिरिक्स एंड म्यूजिक गो टुगेदर, बट पोइट्री इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम लिरिक्स. So how does poetry as an art form and music, how do they support each other? एक्चुअली आप उसके बेसिक से बेसिक में भी जाएं तो जब एक कोई शायर अपनी तन्हाइयों में दर्द के, प्रेम के गीत लिखता है तो वो शायरी में जब धुन शामिल हो जाती तो संगीत बन जाता है. correct. तो बहुत ही गहरा रिश्ता है दोनों आर्ट फॉर्म्स में. तो दोनों विधाएं भले ही अलग हैं बट फिर भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं. तो वो तो जोड़ना मैंने जब से शुरू किया है तब से मेरी इच्छा यही रही है कि मैं अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को साथ में लाऊं. तो ये तो शुरू से मेरी इच्छा रही थी. एक और ये चीज़ है कि पोइट्री जो एक चीज़ है वो अब्जॉर्ब भी करने की चीज़ है. आप शब्द कितना सुनते 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 चले जाओगे, व्हेन विल यू अब्जॉर्ब. और हर पोइट्री में डेप्थ रहती है, लाइंस रहती हैं, भारी भारी शब्द रहते हैं, हर शब्द का एक वज़न होता है. तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव सम ब्रीदिंग स्पेस टू माई ऑडियंस टू अब्जॉर्ब थिंग्स एंड एट द सेम टाइम गिव देम एन एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस. तो मैंने नोटिस किया है कि मेरे यहाँ पे जो लोग आते हैं वो चाहते हैं कि एटलीस्ट पूरे सेगमेंट जो हमारा 2 घंटे का रहता है उसमें 1-2 गाने तो मिले, क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है. और हम लोग तो यही कोशिश करते हैं कि पुराने हिंदी गीत गाएं. और वो बहुत कनेक्ट कर पाते हैं हमारे ऑडियंस उससे. और साथ में जब मैं देखती हूँ सब लोग साथ में गुनगुना रहे हैं नीले नीले अंबर पे या इस तरह के पुराने किशोर कुमार के, मोहम्मद रफ़ी के गाने, तो उसका अपना ही एक अलग चार्म रहता है. एक एम्बियंस क्रिएट हो जाता है. बिल्कुल correct. बिल्कुल. और वी ऑल नो कि आज कोई हमारे जनरेशन से लेके इवन न्यू जनरेशन तक वो जो पुराने गानों का चार्म रहा है वो ही रहा है. मेरे प्लेलिस्ट I में think सब वही रेट्रो म्यूजिक Everybody है. still goes back to the old music, Lata Mangeshkar, Classics. Mohammad Rafi मोहम्मद days, रफ़ी. the soul of soulful music. And rare है कि वो music connects people. Music connects It people, brings yeah. people together. Yeah, Yes. absolutely. वो मैंने नोटिस किया है कि हमारे सेशन में भले ही जब कविताएं, काव्य पाठ चल रहा है तो लोग बैठे हैं कि चलो हो सकता मेरी टर्न कब आएगी, हो सकता उनको किसी का परफॉर्मेंस बहुत पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही गाना आता है तो दे आर ऑल अलर्ट, सिंगिंग अलोंग, टैपिंग. सो दैट्स अ I डिफरेंट think- एक्सपीरियंस. एब्सोल्युटली. आई थिंक मुझे बहुत मतलब स्पिरिचुअलिटी का एक कनेक्शन पोइट्री के साथ महसूस होता है. पर्सनल एक्सपीरियंस में भी जब मैं सिर्फ पढ़ भी रही होती हूँ तो मुझे एक अंदर से एक स्पिरिचुअल कॉलिंग आती है. एंड भक्ति इज समथिंग जो एक मोमेंट में, म्यूजिक, एक भजन आप सुन Yes. रहे हो जहाँ आप घंटों के मेडिटेशन में कभी कभी वहाँ नहीं पहुँच जाते हो, बट Correct. एक भजन, एक भजन, नोट एक लाइन आपको वहाँ बिल्कुल पहुंचा देता अंदर है. से या पहुंचा रोंगटे देता खड़े है. हो जाते हैं. हाँ बिल्कुल. सो आई थिंक दैट स्पिरिचुअल, और इसीलिए शायद हमारे इतने पोएट सेंट्स रहे हैं, वेदर इट इज़ त्यागराजा इन द साउथ. त्यागराजा की कृतिज़ हैं जो ब्यूटिफुली डिवोशनल हैं, या फिर कबीरदास ऑफ कोर्स, दोज काइंड ऑफ थिंग्स. तो पोइट्री और स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत डीप कनेक्शन रहा है. And it'd be great to understand if that has underpinned your journey in any way, or you reach out to that in your moments of, when you feel you need a support system. And do you go to poetry? Does it create a spiritual vibe in you? एक्चुअली मेरे जो फादर थे वो रिलीजियस टीचर थे. और उनको सारे जो शास्त्र होते हैं, उपनिषद है, पुराण, वेद, सबका बहुत ज्ञान था. अच्छे स्कॉलर थे संस्कृत के. और उनकी बहुत जमती थी. पर ये मैं नहीं कहूँगी कि उनसे मेरे को सारा ज्ञान मिल गया, बिकॉज ही वॉज इन द आर्मी. सो इट्स नॉट दैट कि ही वॉज ऑलवेज अराउंड. Available, सो आई डिड नॉट अनफॉर्चुनेटली couldn't imbibe or take all the knowledge that he had. Yet I think वो हमारे generations में pass on हो ही जाता है. Yes. सहज तरीके से. तो वो कहीं ना कहीं कुछ अंश रह गया होगा मुझ में, और इसीलिए मेरे को झुकाव है इस दिशा में. ख़ास तौर पे जब उनकी डेथ हो गई तो तब से मेरे को थोड़ा अलग से जुड़ाव हो गया स्पिरिचुअलिटी की तरफ. और फिर जैसे आपने पूछा पोइट्री और स्पिरिचुअलिटी, तो मैं कोई भी कविता ऐसी नहीं होती है जो मैं ये सोच के लिखती चलो आज इस पे लिखते हैं. ऐसा नहीं होता है कि चलो वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखते हैं या चलो कश्मीर देख कर आई उस पे लिखते हैं. ऐसा नहीं होता है. आई थिंक ऑल द आर्टिस्ट, नॉट जस्ट मी, इवन अ पेंटर, इवन अ डांसर, इवन अ सिंगर,
we all go into some zone that time when we are creating something. Yes. और when we are creating that, और वो जो उस zone में जो रहते हैं तो create होता है. और in my case ज़्यादा करके जो thoughts होते, जो seed होता है, पहला शब्द, पहली लाइन, वो मेरे को कोइंसिडेंटली वो ब्रह्म मुहूर्त के आसपास, when neither I'm sleeping nor awake, ऐसे समय पे बस हिट कर जाता है. एट टाइम्स जब मैं मेडिटेशन में बस आई एम जस्ट अबाउट टू स्लिप इनटू मेडिटेशन, वो एक रहता है, अगर आप करते हो तो आपको पता होगा, जस्ट जा रहे हैं आप उसमें या उससे वापस आ रहे हैं, तो वो एक ट्रांजिशन जो होता है, तो वो वहाँ पे आपको मिल जाता है वो सीड, और फिर आई डेवलप ऑन इट. तो बहुत मेरे केस में बहुत ही क्लोज कनेक्शन है बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड पोइट्री, एंड इसी, और वही मैं फिर कंटिन्यू करती हूँ, फिर मैं लिखती हूँ. और आई थिंक जब मेरा कनेक्ट रहता है ऊपर वाले से, या वो जो भी एक अदृश्य शक्ति है, तभी मैं लिख पाती हूँ. तो मैं नहीं लिखती, आई थिंक कोई लिखवाता है मुझसे. You know, it's surprising आप ये बोल रहे हैं गरिमा, क्योंकि of course I have been running a dance studio for 20 years and मेरा interaction इतने amazing artists से रहा है, right? They are all very 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 accomplished. एंड मैं हमेशा ये कहती थी, और मुझे हमेशा ये लगता था कि वहाँ जो एक क्लास में खड़े होके उस मोमेंट में जो उनको, आई ऑलवेज यूज्ड टू से क्रिएटिविटी इज़ नॉट अ स्किल, क्रिएटिविटी इज़ गॉड गिफ्टेड, एंड दैट कम्स ओनली टू, ऐसे नहीं आप अक्वायर नहीं कर सकते हो, ऐसे नहीं आप क्रिएट नहीं कर सकते, बट it comes from within, it comes from a space that we tap into. बिल्कुल. जो ऐसे, ठीक है आप स्टेप्स को परफेक्ट कर सकते हो प्रैक्टिस कर करके, लेकिन उसको क्रिएट करना, that is very different from the actual implementation. And what you've said is so beautiful कि आपको वो जो inspiration आती है उस moment में, when you are in meditation, and they say art imitates life or life imitates art. So I also just, you know, I wanted to know कि आपको ये, where do you get this, where does it come from? Does it come from your years of journalism, because आपने इतना experience किया है, life को इतना closely देखा है, इतने लोगों से मिले हो? Does it come from there? Is it more personal? I think it's a combination of everything. और मैं तो और भी पीछे जाऊंगी, आई थिंक क्योंकि मेरे पापा इतने विद्वान थे, तो शायद उस वजह से भी हो सकता है. एक और है कि जो लोग मैं अदरवाइज कम बात करना पसंद करती हूँ, तो जो लोग कम बात करते हैं वो शायद ज़्यादा सोचते हैं, वो भी हो सकता है. ऑफ कोर्स इतने सारे लोगों से मिली हो तो तजुर्बा बहुत हुआ है, और लाइफ के कुछ खट्टे मीठे अनुभव होते हैं ना, दैट ऑल्सो प्लेज अ लॉट ऑफ रोल. येट आई वुड से कि वॉट एवर आई राइट इज़ नॉट मी, आई थिंक आई एम जस्ट अ मीडियम. कोई है जो लिखवा रहा है, और मैं बस एक ज़रिया हूँ उसको लिखने का. क्योंकि ये क्रेडिट लेना कि ऑफकोर्स हर पोइट्री के पीछे एक इमोशन होता है, बट वो इमोशन भी मुझ में आया कैसे, कैन आई टेक क्रेडिट फॉर दैट? आई डोंट थिंक सो. सो वो भी मेरे को लगता है कि कुछ और है. तो ये तो हर आर्ट फॉर्म में होता है. आई थिंक दैट्स रियली ब्यूटीफुल. आपने एक दो चीज़ें इतनी इंस्पायरिंग कही है, क्योंकि यू नो यू सेड कि जो आप वो मोमेंट्स, दैट टाइम ऑफ द डे, जो हम लोग 3 संध्याएं मानते हैं सनातन में, जो 3 संध्याएं हैं, 2 नहीं, सनराइज है, 12 नून है, मिड डे है, और फिर सनसेट का टाइम है. दीज आर ट्रांजिशनरी टाइम्स. और ये माना जाता है कि सुषुम्ना नाड़ी में उस टाइम ऑटोमेटिकली सबकी ब्रेथ आती है, जो अदरवाइज इड़ा और पिंगला में होती हैं वो. एंड आई जेन्युइनली बिलीव, जो आप कह रहे हो ना कि मेरे से ऑलमोस्ट करवाया जाता है, तो ख़ासकर पोइट्री म्यूज़िक में यू नो हम मानते हैं कि माँ सरस्वती विशुद्ध चक्र में गले में आ जाती हैं, तो तब जाके ये चीज़, इवन इफ़ यू आर अ गुड स्पीकर, वो माँ सरस्वती की देन है आपको, और वो कहीं मैनी लाइफ टाइम्स के थ्रू आपके पास आई है. एंड देन यू नो इमीडिएटली आप वो सर्कमस्टांसेस में भी बर्थ लेते हो. जैसे आपने कहा कि आपके फादर बहुत बड़े विद्वान थे, मेरे को तो वहीं पे यू नो वो एक्सप्लेनेशन मिल गई कि व्हाई इज गरिमा व्हाट गरिमा इज. यू नो वो रिलीजियस टीचर थे, तो वो ना ये सारे डिस्कोर्सेज हैं
उन पे सारी चीज़ों पे डिस्कोर्सेस दिया करते थे. Wow. तो ही वॉज अ नेचुरल स्पीकर. इट वॉज नॉट कि वो पोएट थे या कुछ थे, बट वो बहुत ही सहज थे. मतलब आपसे भी अगर वो बातें कर रहे हैं ना, किसी जनरल आप पूछे अंकल ऐसा वैसा कुछ भी, बातों बातों में वो संस्कृत का एक श्लोक बोल देते थे Wow. एक्सप्लेन करने के लिए. ब्यूटीफुल. तो वो देख देख के मैं बड़ी इनर हुई. नॉलेज थी उनकी. बट आई थिंक पोइट्री इज समथिंग, और कविता ऐसी चीज है कि उसके बारे में बात तो हमने बहुत की है, लेकिन कुछ सुनना भी चाहते हैं. Yes. So I think we'll get Garima to give us a little verse, and then Yes. so please कुछ आप जो आपकी चॉइस है कुछ भी सुनाइए हमें. तो एक तो मैं जो कंटेम्प्रेरी जो अभी सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड में उसके ऊपर सुनाती हूँ, और एक कुछ लाइट सुनाती हूँ. तो कहा है कि एक बड़े शहर के छोटे से मोहल्ले में, एक बड़े शहर के छोटे से मोहल्ले में खिलौना वाला आया. घंटों पुकारता रहा, खिलौना ले लो, खिलौना ले लो, खिलौना ले लो. लेकिन किसी दरवाजे से कोई बच्चा दौड़ता न बाहर आया. खिलौने वाले ने कुछ सोचा और मन का सवाल एक गुजरते हुए श्रीमान से दोहराया, क्यों भाई साहब, यहाँ बच्चे नहीं रहते क्या? जवाब आया, बच्चे तो रहते हैं, बचपन नहीं रहता. वाह 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 वाह. Thank you. Beautiful. Beautiful, beautiful. Thank So you. wonderful and so true. ये हमारे बच्चे भी कितने डिजिटल हैं. वो थोड़ी देर पहले आपने बात करी थी ना टेक्नोलॉजी की, और ये जो हम बोल रहे हैं ना बच्चे, आई थिंक वी अडल्ट्स ऑल्सो, Yeah, एवरीबॉडी इज हुक्ड ऑन टू इट. Yeah, it's absolutely. But it's so true कि बचपन ना रहा. You know, अगर हमारी बचपन और आज की जनरेशन की बचपन जो iPad में है. इनफैक्ट आई फील बैड फॉर देम. इट्स नॉट दैट कि आई से कि लाइक व्हाट आर दे डूइंग. इट्स नॉट देयर फॉल्ट. Not at all. आई It's थिंक the हमें environment we have मिलता created. मोबाइल तो हम भी यही करते. Correct. Exactly. Exactly. It's beautiful. Very और आप कह beautiful. रहे थे कुछ लाइट भी सुनाने वाले हो. नॉट लाइफ, समथिंग लाइट. इसमें आप इमेजिन कीजिए कि एक प्रेमिका है जो अपने प्रेमी से बात कर रही, जो साथ में नहीं रहते, तो शी इज टेलिंग हिम समथिंग. कल चांद जब निकले आसमां में, कल चांद जब निकले आसमां में, तुम अपनी छत पर आ जाना. मैं निहारूंगी तुम्हें खिड़की से, कुछ तुम भी उसको कह जाना. बदरी से जब वो झांकेगा, बदरी मतलब बादल, Yeah. बदरी से जब वो झांकेगा, होगी चांदनी उसके साथ. बदरी से जब वो झांकेगा, होगी चांदनी उसके साथ. मैं चांद तलक हथेली बढ़ाऊंगी, तुम दे देना मुझे अपना हाथ. Oh. कुछ सितारे देगा वो तुम्हें उधार, कुछ सितारे देगा वो तुम्हें उधार. तुम मेरी ओढ़नी पर जड़ देना. कुछ सितारे देगा वो तुम्हें उधार, तुम मेरी ओढ़नी पर जड़ देना. लिखा था खत जो मुझे कभी चंदा की रोशनी में पढ़ देना. Oh. अगर आप लोगों को पता हो, चकोर करके एक Yes, पक्षी yes, होता है yes. जो उड़ सकता है, लेकिन वो उड़ने से ज़्यादा चलता है, और उसको चांद से प्यार होता है. तो वो आगे कहती है, चकोर के पंखों को थामे मैं कुछ दूरी तय कर लूँगी. चांद तक जाना है उसको. चकोर के पंखों को थामे मैं कुछ दूरी तय कर लूँगी. तुम दे देना साथ मेरा, मैं मंजर मुट्ठी में भर लूँगी. और आखिर में वो कहती है, इस चारू चंद की चंचल चितवन में, इस चारू चंद की चंचल चितवन में, चलो हम दोनों खो जाते हैं. फलक के किसी कोने में अपना आशियाँ बनाते हैं, अपना आशियाँ बनाते हैं. वाह वाह वाह. Beautiful, ब्यूटीफुल. beautiful. आपने बिल्कुल ही एक रोमांटिक रोमांटिक, हाँ बिल्कुल पहुंच गए वहां पर. और मुझे बहुत चांद पे पहुंच गए हम तक. खास लगा कि बहुत विजुअल है ये पोएट्री आपकी. Yeah. जो स्टाइल है ये, जैसे आप बोल रहे हो तो इट्स लाइक वाचिंग अ मूवी. यू नो, वो पूरा विजुअलाइज हो रहा है मेरे आंखों. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. Very एंड आई थिंक ऐसी चीज़ें मुझे फिर लगता है कि इसीलिए ये तो हिंदी में ही एक्सप्रेस हो सकती है, या शायद उर्दू में. Yeah. यू नो, बट ऐसी चीज़ों में इवन एनी ऑफ आवर सनातनी कॉन्सेप्ट्स, संस्कृत को जब हम कोशिश करते हैं इंग्लिश वर्ड्स देने की,
तो वो बिल्कुल फेल हो जाते हैं वहाँ पे। तो इस तरह की रोमांटिसिज्म जो हिंदी में आ सकती है, सही आई थिंक कहा और आपने। कोई भाषा में बहुत मुश्किल है अचीव करना। सही कहा सो आपने। आई थिंक इट्स रियली रियली ब्यूटिफुल। वेरी ब्यूटिफुल। एंड गरिमा, आप तो इसको यू आर टेकिंग इट वन स्टेप फॉरवर्ड। आप अपनी पोइट्री को यू नो यू आर यूजिंग इट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर हीलिंग एंड इट्स रीचिंग कैंसर पेशेंट्स, सोल्जर्स। तो ये आपको किस मोमेंट में ऐसे लगा कि यू नो यू कैन यूज़ दिस talent of yours, this platform of yours to help heal? How did this come about? एक्चुअली सभी के साथ होता होगा शायद कि जब हम कोई अच्छी सी लाइन पढ़ लेते हैं और अच्छा सा गाना सुन भी लेते हैं जिसके लिरिक्स बहुत ही अच्छे रहे, वो हमको हिट तो कहीं ना कहीं Yes. करता ही है। तो दैट वे आई कैन सेफली से दैट इमोशन तो यूनिवर्सल हैं हर जगह। फीलिंग्स एक ही रह होती, जिस चीज़ पे आपको गुस्सा आता है शायद मुझे भी आता होगा, जिस चीज़ से आपको दुख होता है मुझे भी होता होगा, ऊपर नीचे होता होगा बट होता तो है। जिस चीज़ की खुशी आपको होती तो वैसे, लेकिन जब शब्द में पिरो के वही बात कही जाती है तो कहीं हमको समझ में आता है कि अरे इसने वो बात कह दी जो मैं कहना चाह रहा था। क्योंकि कई बार हम अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर Yes. पाते। इन माई ओन केस मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ सालों पहले आई वॉज गोइंग थ्रू अ डार्क फेज। Multiple things happened. My pet dog had died, followed by my father had passed away. Then I underwent a surgery and then some medical issues. And that is the time I began writing more. I was also experimenting with recording on Spotify and YouTube, posting on YouTube on a very amateur level, but I was just experimenting with them. That's when I realized कि जो मैं लिख रही हूँ वो मुझे कहीं ना कहीं सुकून दे रहा है। Correct. और आज भी जिस दिन मैं लिख लेती हूँ, मेरी कोशिश रहती कुछ ना कुछ लिखूँ। इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई एम पोस्टिंग इट समवेयर, शेयरिंग विद टू मेनी पीपल, इट्स नॉट दैट, बट द डे आई एम राइटिंग आई फाइंड इट्स लाइक अ थेरेपी फॉर मी। सो व्हेन आई स्टार्टेड कविता कैफ़े, उसके कुछ ही महीनों, मतलब 6-8 महीनों में मैंने हीलिंग वर्सेस स्टार्ट किया। पहले मैंने एज एन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और हम पहला जो इवेंट था, एक वृंदावन ओल्ड एज होम है, वहाँ जाके हम लोगों ने परफॉर्म किया। वहाँ मैंने देखा कि जब हम परफॉर्म कर रहे थे और ओल्ड एज होम में थे तो मतलब आप सोच सकते माहौल कैसा रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे ना माहौल चेंज होने लगा और हमने क्या किया, पोइट्री तो रखी ही, म्यूजिक भी रखा। और एंड में जब पूरा खत्म हो गया, वन ऑफ द जेंटलमैन गॉट अप एंड सेड दैट आई वांट टू परफॉर्म। तो मुझे समझ में आया कि इसकी ज़रूरत है एंड इट कैन हील, क्योंकि अगर जो मेरे साथ मुझे हील कर सकता है वो किसी और को भी कर सकता है। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू अदर प्लेसेस एंड आई गॉट अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दैट पीपल शोड दैट येस प्लीज़ कम एंड परफॉर्म। ऐसा कुछ हुआ नहीं है इससे पहले और हमने जाके परफॉर्म किया है। गरिमा, जहाँ आप हीलिंग वर्सेस की बात करें, वी टॉकिंग अबाउट आर्ट थेरेपी एंड आई नो बिकॉज हमने हीलिंग थ्रू डांस, यू नो वी डन अ लॉट थ्रू माई प्लेटफॉर्म। एंड मुझे बहुत बार ऐसे फीडबैक मिलता था कि यू नो इवन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन वी डिड कैंसर पेशेंट्स कि भाई दीज लेडीज आर वेरी बिटर एंड नाउ सडनली they become calm. I can see a transformation in them. When we had children with autism, तब ऐसे लगा कि भाई यू नो ऑटिज़म का it's a disability of inability to be social, and because they were coming they had started interacting, they had started opening up, so the mothers were very happy. आपके जर्नी में through healing verses, where do you feel and has there been some defining moment where you felt that truly healing has happened because of poetry and because of the work that you do? एक्चुअली कुछ ही दिनों पहले हम कुछ महीनों पहले हम लोगों ने एक जीरियाट्रिक केयर सेंटर में परफॉर्म किया था और जहाँ पे एक लेडी थी जिन्होंने, मैं सभी से नाम पूछ रही थी तो कुछ को नाम याद था क्योंकि डिमेंशिया था उन लेडी को, तो उन्हें अपना नाम याद नहीं था। शी सेड आई डोंट रिमेंबर माय नेम एंड एनीवे द इवेंट स्टार्टेड एंड व्हेन वन ऑफ द आर्टिस्ट स्टार्टेड सिंगिंग, आई थिंक कश्मीर की कली का वो गाना गा रहे थे और उन्होंने गाना चालू किया और ये जो लेडी थी ये साथ में हमिंग, शी स्टार्टेड हमिंग द सॉन्ग एंड इट वाज सो हार्टनिंग फॉर मी टू सी दैट कि उनको गाना याद है, समवेयर इन द सबकॉन्शियस वो रह गया था उनके। वो इंसिडेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था। और कुछ ऐसे थे जो जब हम पहुँचे हैं वहाँ पे तो वो मतलब दे वर ओके, दे वर नॉट सो कीन कि चलो
कुछ मिलेगा। वो बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन जैसे ही इंजॉय करने लगे, ताल होने लगी, गाना सब माहौल बन गया, तो मैंने उनको वो एक बजाने वाला रहता है, तो वो जेम्बे टाइप का, नॉट जेम्बे, वो डफली टाइप का, वो उनके हाथ में दिया एंड ही वाज हैप्पीली प्लेइंग अलोंग, और ये पैर को ऐसे टैप कर रहे हैं, वो बजा रहे हैं, तो वो सब देख के बड़ी खुशी होती है। एंड देन 2 ऑफ देम ऑल्सो सेड कि हम भी गाएंगे, हम भी गाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो उनके माइंड सेट में रह जाता है, और फिर जाते वक्त वो हमको बोलते हैं कि जल्दी आइएगा, जल्दी आइएगा। सिमिलरली जब हमने कैंसर पेशेंट्स के लिए परफॉर्म किया एक कैंसर केयर सेंटर में, जहाँ पे 3rd और 4th स्टेज के कैंसर पेशेंट्स हैं, वो बड़े खुश हो जाते हैं। मतलब दे आर लिटरली वॉचिंग लाइंग डाउन ऑन अ बेड विथ ऑल द सब उसके साथ, बट स्टिल एक आशा की किरण भले ही थोड़ी देर के लिए बट आती है, और सो बहुत ही सेटिस्फाइंग फीलिंग रहती है कि चलो कुछ हुआ थोड़ी देर के लिए सही। एक gratification कि भाई Beautiful, हमारे it's very beautiful, it's very beautiful. It's really beautiful, and you know, I think through it must be healing you as well so much Yes, when you touch lives like this, and inspiring you as a poet. इन फैक्ट यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि दोनों कविता कैफ़े और हीलिंग वर्सेस बोथ आर माय बेबीज़, बट कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करें, अगर किसी घर में किसी माँ के 2 बच्चे हैं जिनमें से एक थोड़ा स्पेशली एबल्ड है, उसका झुकाव उस पे ज़्यादा होता है। Yes, मेरे of लिए वो बच्चा हीलिंग Healing How verses. beautiful. Very beautifully said. उसका रीज़न ये भी है कि कहीं ना कहीं कविता कैफ़े में रजिस्ट्रेशन चार्जेस तो होते हैं, क्योंकि आई हैव टू टेक केयर ऑफ द लॉजिस्टिक्स Yes, ऑल्सो। yes. हियर नो कमर्शियल एंगल इज इन्वॉल्व, तो इट इज़ ऑल डन विथ हार्ट। और मैंने नोटिस किया कि सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ जो जुड़ते हैं आर्टिस्ट, वो मेरे को हर इवेंट के बाद बोलते हैं कि हम कैसे जुड़ सकते हैं बताइए। तो वो आके परफॉर्म करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बोलते भले हमें परफॉर्म करने ना मिले, हम वॉलंटियर करना चाहते हैं, कुछ भी, भले हमसे फ़ोटो खिंचवा लो, कुछ माइक लगवा लो, ये करवा लो, बट हम वॉलंटियर करना चाहते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिज़ायर फॉर पीपल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव, विच इज़ वेरी एनकरेजिंग फॉर मी। तो वो जो बच्चा है मेरा, उसको बहुत प्यार मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये this when we did Dance with Joy, and I'm drawing a parallel from my life, because आप जो बोल रहे हो मुझे याद आ रहा है जब हम ये shows किया करते थे, और जब because we were doing with differently abled sections every year, तो हर साल में ना एक साल में हमारे मेकअप आर्टिस्ट ने पैसे लेना छोड़ दिया, PR एजेंसी ने पैसे लेना छोड़ दिया, क्रिएटिव डिज़ाइनर सेड forget it, everybody felt that this is something they are doing giving back in some way as a part, because it becomes a movement. जो आप बोल रहे हो ना, it's become more like a movement that everybody feels कि मैं भी अपने तरफ से कुछ एक छोटी सी चीज़ कर लूँ जहाँ you know, to support you in what you are doing. So it's amazing. This is very innate to human nature. So if you look at Maslow's pyramid of motivation, money, though we think everybody is motivated by money and society, yes, money does make the world go round, but money is identified by Maslow as a hygiene factor. कि ज़रूरत है, but it's not a motivational factor. You know, you can't do without, but it doesn't motivate you. And the highest motivation for human beings is from altruistic action. जो हम निष्काम कर्म कहते हैं, it's already there in our you know, Gita. And in Maslow it's called altruistic motivation and actions. तो ये जो चीज़ है, जो लोग इन चीज़ों में जुड़ जाते हैं, पहले तो they don't know what it is, and then they must be feeling that inner transformation of touching lives like that. जो आपने वर्ड यूज किया innate, वो एक्चुअली सबका, वो it is in our innate nature, वो सबका है। हमको सबको एक रास्ता चाहिए कि चलो यहाँ, इसीलिए जैसे ही मिल जाता है तो हम उस रास्ते चल पड़ते हैं। रास्ता भी चाहिए, और ऐसे लोग भी साथ में जुड़ जाते हैं। जैसे ना, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, बिकॉज जब आपके दायरे में कोई होगा ही नहीं जो ये कर रहा होगा, तो आपको कभी वो ध्यान में नहीं आएगा। बट you know, when you get into this, and that is why I feel this Bharatiya frequency is such a beautiful platform also to take a moment and say that, because it's constantly highlighting the underlying spirituality and humanness, innate humankind in every aspect, whether it's through you, whether it's through another guest, through anybody, because it's you are bringing out through this platform the spirituality, the kindness, the love
in everybody. Absolutely. And it's very nice to know that there are different mediums for it. For you, it's poetry. For me, it's dance. For someone else, it's could be something else, it could be yes. something else. So Absolutely, that's it's thank you, beautiful. Achal, It's for that, beautiful because work, I Mimi. think for me it's just that the Bharatiya frequency makes being Bharatiya part of everybody's everyday life. Yes. यू नो ये कोई वो चीज़ नहीं है जो बहुत मतलब अनअटेनेबल ज्ञान है जिसके बारे में यू नो और जो सिर्फ ऋषि मुनि, ऑफ कोर्स वी आर इटर्नली ग्रेटफुल टू द सिद्ध पुरुष, but it is part of our everyday life. It is living it, and one of the reasons why we are not probably protecting our Sanatan Dharma as much as we should is because we don't live it. जब आपकी दिनचर्या में है ही नहीं तो आप किस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो? Correct. तो वो जानकारी भी आप लाना इज़ वन ऑफ माई होप्स फॉर भारतीय फ्रीक्वेंसी. बट वन थिंग दैट आई रियली वांटेड टू आस्क यू गरिमा इज़ कि लिखने के लिए कितना पढ़ना ज़रूरी है? बिकॉज इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ नॉइज आर देयर लिसनर्स? एक्चुअली बहुत ज़रूरी है. मैंने शायद कि जावेद अख्तर जी के इंटरव्यू में सुना था कि अगर आप अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको. आप ये नहीं सोच सकते कि बस मैं जो लिख रहा हूँ वही सही है, वही अच्छा है. आप जब तक दूसरों को पढ़ेंगे नहीं, आपको कैसे समझेगा कि लोग क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, क्या भर नहीं कैसा सोचते हैं और उसको व्यक्त कैसे करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. और उस हर अच्छे बुरे लिटरेचर को कंपेयर करना और अच्छे से कुछ सीखना और उसको अपनी शैली में ढालना, अपनी उससे एक अपनी स्टाइल डेवलप करना, उस सब के लिए एक बैकग्राउंड चाहिए. मतलब ये वही बात हो गई कि ABCD ज़रूरी है कि नहीं पढ़ने के लिए? ज़रूरी है. क्यों नहीं ज़रूरी? वर्णमाला तो आनी चाहिए ना लिखने पढ़ने के लिए. तो पोइट्री लिखने के लिए भी पढ़ना ज़रूरी है. तो वो एक जो चीज़ है जो मैं सारे यंगस्टर्स को भी कहना चाहूँगी कि पढ़ें, ना सिर्फ पढ़ें, दूसरों को सुने भी. क्योंकि ओपन माइक से हो क्या रहा है कि सुनने वाले बहुत कम हैं, सुनाने वाले ज़्यादा हो गए हैं. तो होना ये चाहिए कि अगर आप महीने में 3-4 ओपन माइक ऐसे अटेंड कर रहे हैं जिसमें आप एज अ पार्टिसिपेंट जा रहे हैं, तो 1-2 तो ऐसे जाइए जिसमें बतौर ऑडियंस जा रहे हैं. करेक्ट. दूसरों को भी सुनिए. करेक्ट. तो ऐसा मुझे लगता है. Absolutely well said, Garima. क्योंकि हम एटलीस्ट हमारी जनरेशन, स्पीकिंग फॉर आवरसेल्व्स, वी आर ऑल अ लिटिल बिट अपार्ट बट यू नो क्लोज इनफ जनरेशंस, हमें फिर भी बुक्स हमारी लाइफ की एक बहुत इंट्रिंसिक पार्ट रही है. And I think today people consume content only digitally more than anything. And while there is a great advantage to that, I am not against digital content because it's taking great knowledge to, you know, people's Far and homes. beyond, yeah. At the same time, the beauty of picking up a book and reading, particularly for something like poetry, you know, उसमें जो पढ़ने में मिठास है, बिल्कुल वो कुछ अलग ही है. वो आपकी माइंड की इंटरप्रिटेशन और पर्सपेक्टिव है. And probably this is a perfect segue for me to ask you, Garima, ki, what is your vision for both your platforms? You know, both Healing Verses and Kavita Cafe के लिए आपकी विजन क्या है? आप इसको कहाँ लेके जाना चाह रहे हो? सो जहाँ तक कविता कैफ़े का बात है, मैं चाहती हूँ कि आगे चल के, जैसे अभी तक हमने इसके साथ म्यूज़िक के साथ एक्सपेरिमेंट किया है. इनफैक्ट हमने पिछले 1 साल के अंदर दूसरे आर्ट फॉर्म के साथ भी छोटे छोटे लेवल पे एक्सपेरिमेंट किया है. एक हमारा ऐसा इवेंट था जिसमें पोइट्स परफॉर्म कर रहे थे और एक पेंटर हैं आनंद बेकवाड करके, वो लाइव पेंट कर रहे थे. तो आप इमेजिन करिए कितना खूबसूरत माहौल होगा कि लोग पोइट्री पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लाइव पेंटिंग चल रही है. जैसे जैसे पोइट्री होते होते एक एक पार्टिसिपेंट का होता गया, इनके पेंटिंग ख़त्म होती गई. एंड में खूबसूरत 3-4 पेंटिंग उन्होंने तैयार कर दी थी. तो हम सब के लिए वो अनुभव और उनके लिए ये अनुभव कि पेंटिंग करते वक्त कुछ सुन रहे हैं, अलग अलग भाव सुन रहे हैं, तो वो बड़ा पूरा एटमॉस्फेयर ही अलग सा क्रिएट हो गया था. वो एक था. फिर एक हमने ये किया था कि मैंने कुछ पोइट्री परफॉर्म करी थी, अ सेट ऑफ 2 पोइट्री ऑन राधा कृष्णा एंड कृष्ण मीरा, और उसमें एक बांसुरी वादक थे जो बांसुरी बजा रहे थे. तो आप सोचिए कि पोएट्री इज टॉकिंग अबाउट कृष्ण जी और बांसुरी वादक हैं, तो वो एक अलग सा माहौल क्रिएट हो गया था. देयर वी कंबाइन फ्लूट एंड पोएट्री. तो इस तरह आगे चल के मैं कोशिश ये रहेगी कि डांस के साथ लाऊं, पोएट्री को कंबाइन करूं,
हो सके तो थिएटर के साथ कंबाइन कर दूं, जितना भी जो भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो different art forms अगर को। मैं अपनी खुद की स्टाइल में व्यक्त करूं इस आशा जरूर, को, please, तो मैं please। कहूँगी कि न चांद पाने की ख्वाहिश है न तारों को पाने की उम्मीद, न चांद पाने की ख्वाहिश है न तारों को पाने की उम्मीद, बस थोड़ी सी ज़मीं थोड़ा आसमां चाहती हूँ, मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं पर थोड़ा सा उड़ना भी चाहती क्या हूँ। बात वाह है, वाह वाह beautiful. वाह, क्या बात है, कितनी Beautiful. खूबसूरत आप लिखते हो. It's Really beautiful, beautiful. Thank you. beautiful. And I think you know, I would love for to hear a little bit more. And if possible, आपने कृष्ण जी का जिक्र किया, तो if we could hear any of your poetry of your choice, थोड़े से verses और हमें पढ़ के सुनाइए प्लीज. बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो एक सुनाती हूँ जो बहुत ही प्यारी है और मेरे दिल के करीब भी है। ये जो है कविता, ये आप इमेजिन करिए कि मीरा जी जो थी, अच्छा मीरा जी का जो प्यार था कृष्ण जी के लिए और जो राधा जी का था, दोनों बहुत अलग अलग था। Correct, प्यार तो yes. प्यार होता पर उसका रूप Different. स्वरूप अलग था। तो इसमें मीरा जी हैं जो शिकायत कर रही हैं कृष्ण जी से, वो मैंने व्यक्त करने की कोशिश की है। आप इमेजिन कीजिए कि एक मीरा जी हैं मंदिर के बाहर बैठी हैं और कृष्ण जी से बात कर रही हैं कि ठाड़ी पथ में राह निहारी, ठाड़ी का मतलब खड़ी, हाँ, ठाड़ी पथ में राह निहारे, है धीरज छूटो जाए, उसका सब्र टूट रहा है। ठाड़ी पथ में राह निहारे, है धीरज छूटो जाए, कछु कहती मीरा कान्हा से पर कान्हा सुन ना पाए। वाह, मैं बैठी तोरे भक्तों के संग, मैं बैठी तोरे भक्तों के संग, तू मोहे देख न पाए। चरण धूल तो बटी है सब में, मुरे हाथ ही कुछ ना आए। क्या बात है। आगे कहती हैं कि हे कान्हा तुम इस जग के, हे कान्हा तुम इस जग के, क्यों मोरे बन ना पाए। तुम बस गए सबके मंदिर में, क्यों मोरे घर ना आए। और शिकायत का पिटारा खोल के बैठी हैं वो कि जब निकली घर से उंगली थामे, जब निकली घर से उंगली थामे, जब हम भी जब छोटे थे तो एक बचपना जो है हमारा, इनोसेंस ना बड़े होते होते खो जाता है। तो उसको कंपेयर कीजिए इनोसेंस से। जब निकली घर से उंगली थामे, गड़े थे नैना तुझ पर ही, इस जगत मेले की भीड़ में तोरो हाथ फिसलो जाए। वाह, और आखिर में वो कहती हैं कि मैंने भेजी थी चिट्ठी पाती, मैंने लिखी थी चिट्ठी पाती और भेजा एक संदेशा था। मैंने लिखी थी चिट्ठी पाती और भेजा एक संदेशा था, है तोरा ठिकाना बदल गया, मेरी चिट्ठी लौट कर आए। कछु कहती मीरा कान्हा से पर कान्हा सुन ना पाए, पर कान्हा सुन ना पाए। Beautiful, amazing. ब्यूटीफुल। और बहुत। मुझे बहुत अच्छा लगा वो, क्योंकि उसकी एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, क्योंकि जो चाइल्डहुड में हमारी नेचुरल एफिनिटी टुवर्ड्स गॉड, फेथ और वो इनोसेंस, हम सब उंगली पकड़ के ही निकलते हैं इस राह पे, पर कहीं पे ये जो दुनियादारी की प्रोग्रामिंग है वो उंगली छूट जाती है और हम So, भटक जाते बहुत हैं। ब्यूटीफुल लगा वो एलिमेंट मुझे आपके पोएम का. Wonderful. Thank I you. think, is there anything else you would like to read to us as well? If you want, Please, I can. yes. One more at least. Very addicting your poetry is. एक जो है जो मुझे खुद को जो सरल जीवन है ना उससे बहुत लगाव है। गांव देहात की जो लाइफ होती है, ज़रूरी नहीं कि गांव ही, मतलब सरल लाइफ, Simplicity, हाँ जी। सिंप्लिसिटी से बड़ा लगाव है मुझे। और हम जो शहरों की लाइफ है ना, हम ना चाहते हुए भी उतना चकाचौंध में वो हो जाते हैं कि हम स्ट्रेस ले लेते हैं अपने ऊपर। तो उसके ऊपर है, इस कविता का नाम है खूंटी। गांव में आपने देखा होगा कि हर दीवार पे एक ऐसा कीला टंगा रहता है, उसको खूंटी बोलते हैं। Oh, okay. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं जिंदगी की शुक्रगुजार नहीं, पर इस शहर में मेरे गांव सा प्यार नहीं। अलग अलग नाम के रिश्ते तो हैं, पर रिश्तों में वो गर्माहट, वो आग नहीं। हाँ, मेरी थाली में रोटी तो है, पर रोटी पर चूल्हे की राख नहीं। वाह. देहातों के कच्चे घरों में, अगर आपको पता हो, एक कील टंगी होती है जिसे खूंटी बोलते हैं देहाती लैंग्वेज में। अच्छा, खूंटी. देहातों के कच्चे घरों में अक्सर दीवार पर एक ना एक खूंटी ज़रूर होती है,
उस खूंटी पर कभी लालटेन, कभी स्कूल का बस्ता, कभी दादा की छतरी टंगी होती है। क्या बात है। मेरे शहर के पक्के मकान में यूँ तो सहूलियत की कोई कमी नहीं है, पर मेरे घर की चमकती दीवारों पर कहीं कोई खूंटी नहीं है। क्या बात क्या बात है, बिल्कुल सोचती दिल को छू हूँ। लेने वाली। सोचती हूँ किसी दीवार पर एक खूंटी गाड़ दूँ और थोड़ी देर के लिए अपनी सारी परेशानियाँ उस खूंटी पर टांग दूँ, उस खूंटी पर टांग दूँ। वाह Amazing. वाह वाह, दिल एकदम लाइक यू नो, Amazing. मैं वापस अपने गांव चली गई थी और याद कर रही थी वो, एंड एक्चुअली खूंटी है। हमारे घर में भी है। So beautiful. So I think on that note, गरिमा जी, आपने हमें एक अलग ही जर्नी पे आप ले गए हो आज, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट हो गए हैं। एंड आई थिंक जब ट्रूथ, जब सच्चाई, जब अपनापन, जब प्यार यू नो शब्दों में पिरोए जाते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट भी अलग है। और आप हमें ऐसे स्पेसेस में ले जाते हो अपने अंदर which we didn't know existed. Existed, correct. yes. You know, you're getting in touch with parts of yourself बिल्कुल Absolutely. बिल्कुल बिल्कुल। that you didn't know existed. Existed, And आपकी कविता की एक खासियत मुझे लगती है कि आप ये वर्ड पिक्चर्स पेंट करते हो, और जब आप रीड कर रहे होते हो तो बिल्कुल वो माइंड ट्रांसपोर्ट हो जाता है, बिल्कुल। है ना? So I really can't thank you enough for In fact, making I the should be time. thanking both of you. No, for making the time and sharing, and it was so wonderful to have such a talented and dynamic person Thank on the podcast today. So I hope the first of many episodes with you. बिल्कुल, बिल्कुल। It should not. Maybe we'll come do It's something. been my privilege and thanks to both of you. And I would love to be a part of Bharatiya frequency in the future as well. Absolutely. I look forward to maybe us co-hosting something, and also maybe showcasing Kavita Cafe on one of our episodes. And I also want to thank Achal Gupta Kalantri Yes, today. thank you, Where Achal. you know, she's made time from a very busy schedule. In fact, and we can collaborate with dance and Yes, Dance we poetry. and absolutely poetry, should. yes. We absolutely should. आपसे बातें करते करते मुझे अपने स्टूडियो के दिन याद आ गए। बहुत काफ़ी साल हो गए छोड़े को, लेफ्ट बिहाइंड ऑल ऑफ दैट। और अब मुझे ऐसे लग रहा है कि यू नो वो सारा वो टाइम, वो सारे मोमेंट्स, एंड स्पेशली व्हेन वी वर डूइंग डांस विद जॉय, व्हिच वाज a lot of, like I said, working with different sections of the society, and बहुत अपने वो दिन याद आ गए, you know, and creativity and art, you know, the bonding that you do through a shared passion, whether it is, you know, even speaking, even a podcast, or poetry or dance is a very different kind of connection. It's very different than इनफैक्ट कविता कैफ़े के इवेंट में जो एक चीज़ जो मुझे सबसे खास लगती है मेरे लिए पर्सनली, इट्स नॉट कि जब मेरी रील शेयर होएगी या जब लोग मुझे आके तारीफ़ करेंगे, ये सब नहीं। मेरे को तब अच्छा लगता है जब एक बीच में ब्रेक लेते हैं हम लोग 10 मिनट का, जिसमें सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं और ऑडियंस एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। वो पहले मिले नहीं रहते हैं, पर वो उनको कनेक्शन है आर्ट फॉर्म कि तुम कब से लिख रहे हो, तुम किसको पढ़ा है, ये किताब तुमने छपवाई है क्या, कुछ पोइट्री अभी किस पे काम कर रहे हो। तो मतलब दो आर्टिस्ट जब एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, आर्ट ऐसे जोड़ देता है बस आपको। आप देखिए दो म्यूजिशियन, आप एकदम ऐसे आप स्ट्रेंजर्स को बिठा दें तो वैसे वो बात नहीं करेंगे, लेकिन दो म्यूजिशियन झट करके बात करते हैं। बिल्कुल, I think it's lovely. इज अ वेरी लाइक Connector. फ्लूइड कनेक्ट। यहाँ मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। यू नो, तौफीक कुरैशी, वेरी 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 अकम्पलिश्ड आर्टिस्ट। तो वो हमारे स्टूडियो में सिखाया करते थे। मैं उनके पीछे एक दिन पड़ गई कि तौफीक जी, हमारे एक शो में ना आपने जुगलबंदी करनी है। तो वी हैड अ वेरी 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 टैलेंटेड, शी वाज अमेजिंग, शी वाज अ बेली डांसर फ्रॉम ब्राज़ील। आई सेड, तौफीक जी, आप जेम्बे, यू प्ले द जेम्बे, तो यू डू वन नाइस जुगलबंदी एट द शो विद हर। एंड बड़े पीछे पड़ गई थी, एंड ही मस्ट हैव थॉट कि ये तो मुझे छोड़ेगी नहीं। चलो, ही डिड इट, and it was such a stunning performance because a live जुगलबंदी between his beats and her movements। और फिर हर साल मुझे पूछते थे, अच्छा इस साल हमको किसके साथ जुगलबंदी करें, अच्छा इस साल हम, अच्छा वो तुम्हारी बी बॉयज है ना, उनको बोलो आए। यू नो, इट्स दैट एज एन आर्टिस्ट you feel inspired by other people's art and talent, and I think that you're bringing that about through poetry, and it's amazing। मैंने हमारे हीलिंग वर्सेस का इवेंट चल रहा था और एक फ्लूट आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे, अविकल नाम है।
तो वो परफॉर्म कर रहे थे, जब तक वो स्लो धुन बजा रहे थे, कुछ डिवोशनल धुन बजा रहे थे, तब तक एक जेम्बे आर्टिस्ट भी थे उस, वो चुपचाप बैठे थे, और जैसे ही वो धुन फास्ट हुई वो बजाने वो लगे। अंदर से जिम में लाए बैठ गए, खट खट बजाने खट खट लगे, खट yes. बजाने लगे। That's an artist. That's a true artist. I think Amazing. बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन रहा है, एंड हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको आई जस्ट वांट टू लीव देम विद दिस थॉट कि आप मेडिटेशन कितना करोगे, इफ़ यू आर अ प्रैक्टिस्ड मेडिटेशनर, you may sit down for 1 hour and you may be in the zone for 5 minutes if that, and similarly I think जो हमारी जो रिचुअल्स हैं, जो पूजा पाठ हमारी लाइफ को इतनी ब्यूटिफुली एक डायरेक्शन देती हैं, वो भी आप कितना कर लोगे. बट आई थिंक आर्ट, म्यूज़िक, पोइट्री, Yes. इसको कहीं भी आपके डे में आप इंक्लूड करें, बिकॉज this raises your frequency to that divine frequency and it keeps you there. आप भले आपके गाड़ी में कुछ सुन रहे हो या anything like that, during your day you can make every day a यज्ञ. मेरे गुरुजी ओम स्वामी जी भी कहते हैं कि गृहस्थी को अपने दिन में ही, right from bathing to eating, you can make it a yajna. And I think that poetry and music today we have learnt, I have certainly learnt, that it can be such a beautiful medium to take you towards your divinity and your inner self. Correct. So thank you so much. But you do realize that this is also an art form, what you are doing. बिल्कुल बिल्कुल The way you are interpreting everything and presenting it in language and in, this is also an art. bringing It's together the right kind of people, उनको एक प्लेटफॉर्म देना. there वो is भी one thing in understanding and interpreting, and this I'm just saying generally, but understanding and interpreting what a speaker is saying, understanding their values, their core, where they come from, and sharing it with through Bharatiya frequency. I think that's amazing as well. So Thank you so amazing much. work, Mimi. God bless you. No, thank you so much. And I think somewhere it is my ma, my Lalita Tripura Sundari, who is the guidelines and who's the guidance, and the light of my guru, I hope, is guiding me towards making us all remember what it means to be Bharatiya. And on that note, thank you so much, Garima Thank you. Mishra, for your Thank you. time and Thank your you so much. vibrant and beautiful presence Thank you. Thank you so today much. on the Bharatiya Thank you. frequency. And thank you so much, Aanchal. I hope part of many more. Yeah, Mimi, thank you so much for having me. Thank you, Thank you. Garima ji. Thank you so much. everyone.